بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ کل آپ نے مضمون کشمیر میں کسی صحت افزا مقام پر لکھنا پورا کیا، شاید آپ نے مذکورہ مضمون کی جانکاری اچھی طرح کی ہوگی اور اس کو اپنی کاپیوں پر لکھا بھی ہوگا اور اس کا کچھ حصہ یاد بھی کیا ہوگا۔ آج آپ اردو ڈرامہ کا تعارف کریں گے۔ مجھے پوری امید ہے کہ آپ اس کو غور سے سنیں گے اور بعد میں یاد بھی کریں گے۔ آپ یہ اچھی طرح سے سنیں گے۔ اردو ڈرامہ کا تعارف، یہ آپ کے سلیبس میں ہے۔ ڈرامہ یونانی زبان کے لفظ ڈراو سے مشتق ہے۔ میں ایک بار پھر پڑھوں گا۔ ڈرامہ یونانی زبان کے لفظ ڈراو سے مشتق ہے، جس کے معنی ہیں عمل یا ایکشن۔ ہر زبان اور ہر ملک کی تعریف کے مطابق ڈرامہ انسانی زندگی کی عملی تصویر ہے۔ اس کی ابتدائی نقالی سے ہوئی ہے۔ اس کی ابتدا نقالی سے ہوئی ہے۔ میں ایک بار پھر پڑھوں گا۔ ڈرامہ یونانی زبان کے لفظ ڈراو سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے عمل یا ایکشن۔ ہر زبان اور ہر ملک کی تعریف کے مطابق ڈرامہ انسانی زندگی کی عملی تصویر ہے۔ اس کی ابتدا نقالی سے ہوئی ہے۔ ڈرامہ نے سب سے پہلے یونان اور ہندوستان میں آنکھ کھولی اور ان ممالک میں اس کے اصول بھی سب سے پہلے وضع کیے گئے۔ بھرت منی نے ہندوستان میں اور ارسطو نے یونان میں اس کے مسائل پر غور کیا۔ بھرت منی نے لباس، آواز، جسمانی اعضاء کی حرکت، رقص اور موسیقی کو ڈرامہ کے لازمی اجزاء بتائے ہیں۔ ان کے مطابق ڈرامے سے ناظرین کے دلوں میں ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے، جسے وہ رس کہتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے۔ اسی کی طرف غور کیجیے مہربانی کر کے اور دیکھیے اچھی طرح سے، سنیے بھی اچھی طرح سے۔ ارسطو نے ڈرامے کے لیے 5 اجزاء ترکیبی وضع کیے ہیں۔ ارسطو نے ڈرامے کے لیے 5 اجزاء ترکیبی وضع کیے ہیں: قصہ، کردار، مرکزی خیال، مکالمہ اور موسیقی، لیکن ساتھ ہی وہ اسٹیج کی آرائش کو بھی ڈرامہ کے لیے ضرور قرار دیتے ہیں۔ ارسطو ڈرامہ کو عمل کی نقل کہتے ہیں۔ ارسطو ڈرامہ کو عمل کی نقل کہتے ہیں۔ میں ایک بار یہ پھر پڑھوں گا۔ ارسطو ڈرامہ کو عمل کی نقل کہتے ہیں۔ ان کے مطابق ڈرامہ زندگی کی ایسی نقل ہے جو اداکاروں کے ذریعے دیکھنے والوں کے سامنے پیش کی جاتی ہے، جو بالکل سچی اور اصلی معلوم ہوتی ہے۔ ناقدین ڈرامہ نے ڈرامہ کے جو اجزاء ترکیبی مقرر کیے ہیں وہ درج ذیل ہیں: پلاٹ، کردار، مکالمہ، تسلسل، تصادم، مرکزی خیال، آغاز اور نقطہ عروج۔ یہ یاد رکھنا چاہیے۔ میں یہ پھر پڑھوں گا۔ ناقدین ڈرامہ نے ڈرامہ کے جو اجزاء ترکیبی مقرر کیے ہیں وہ درج ذیل ہیں: پلاٹ، کردار، مکالمہ، تسلسل، تصادم، مرکزی خیال، آغاز، نقطہ عروج۔
आपने ये सुना होगा, और मुझे पूरी उम्मीद है आप इसको अच्छी तरह से याद भी करेंगे और ये कागज पर भी लिखेंगे। यह आपके सिलेबस में है। मैं एक बार ये फिर पढ़ूँगा। उर्दू ड्रामा का तारुफ, ये आपके सिलेबस में याद रखना चाहिए। ड्रामा यूनानी ज़बान के लफ्ज़ ड्राव से मश्तक है, जिसके माने हैं अमल या एक्शन। याद रखना चाहिए। मैं एक बार फिर पढ़ूँगा। ड्रामा यूनानी ज़बान के लफ्ज़ ड्राव से मश्तक है, जिसके माने हैं अमल या एक्शन। हर ज़बान और हर मुल्क की तारीख़ के मुताबिक ड्रामा इंसानी ज़िंदगी की अमली तस्वीर है। इसकी इब्तिदा नकाली से हुई है। ड्रामा ने सबसे पहले यूनान और हिंदुस्तान में आँख खोले, और इन ममालिक में इसके उसूल भी सबसे पहले वज़अ किए गए। भरतमुनि ने हिंदुस्तान में और अरस्तु ने यूनान में। याद रखना चाहिए, भरतमुनि ने हिंदुस्तान में और अरस्तु ने यूनान में इसके मसाइल पर गौर किया। भरतमुनि ने लिबास, आवाज़, जिस्मानी अज़ा की हरकत, रक़्स और मौसीकी को ड्रामा के लाज़मी अज़ा बताए हैं। इनके मुताबिक ड्रामा से नाज़रीन के दिलों में एक ख़ास कैफियत पैदा होती है, जिससे वो रस कहते हैं। याद रखना चाहिए। रियायत सीन मैंने यहाँ पर लिखा है, आप देखिए फिर। अरस्तु ने ड्रामा के लिए 5 अज़ाई तरकीबी वज़अ किए हैं: किस्सा, किरदार, मरकज़ी ख़याल, मकालमा और मौसीकी। लेकिन साथ ही वो स्टेज की आराइश को भी ड्रामा के लिए ज़रूरी करार देते हैं। अरस्तु ड्रामा को अमल की नकल कहते हैं। अरस्तु ड्रामा को अमल की नकल कहते हैं। इनके मुताबिक ड्रामा ज़िंदगी की ऐसी नकल है जो अदाकारों के ज़रिए देखने वालों के सामने पेश की जाती है, जो बिल्कुल सच और असली मालूम होती है। नाक़िदीन ड्रामा ने ड्रामा के जो अज़ा तरकीबी मुकर्रर किए हैं वो दर्ज झैल हैं: प्लाट, किरदार, मकालमा, तसलसल, तसादुम, मरकज़ी ख़याल, आगाज़, नुक्ता उरूज। आपको ये तारुफ होना चाहिए। 8वीं जमात में इतना ही है, और यहाँ पर सिलेबस में भी लिखा है ड्रामा का तारुफ, और मैंने तारुफ के तौर पर ही आपको ये आपके लिए ये मैंने यहाँ पर लिखा है, और आप इसको ज़बानी याद करेंगे और कागज़ पर भी लिखेंगे, और मुमकिन है कि आपके इम्तिहान में भी मतलब सिलेबस के मुताबिक यह पर्चा होगा। और मैं एक बार ये फिर पढ़ूँगा, आप गौर से सुनेंगे इंशाअल्लाह। उर्दू ड्रामा का तारुफ। ड्रामा यूनानी ज़बान के लफ्ज़ द्राव से मश्तक है, जिसके माने हैं अमल या एक्शन। हर ज़बान और हर मुल्क की तारीफ़ के मुताबिक ड्रामा इंसानी ज़िंदगी की अमली तस्वीर है। इसकी इब्तिदा नकाली से हुई है। ड्रामा ने सबसे पहले यूनान और हिंदुस्तान में आँखें खोलें, और इन ममालिक में इसके उसूल भी सबसे पहले वज़अ किए गए। भरतमुनि ने हिंदुस्तान में और अरस्तु ने यूनान में इसके मसाइल पर गौर किया। भरतमुनि ने लिबास, आवाज़, जिस्मानी अज़ा की हरकत, रक़्स और मौसीकी को ड्रामा के लाज़मी अज़ा बताए हैं। इनके मुताबिक ड्रामे से नाज़रीन के दिलों में एक ख़ास कैफियत पैदा होती है, जिसे वो रस कहते हैं। अरस्तु ने ड्रामे के लिए 5 अज़ाई तरकीबी वज़अ किए हैं। अरस्तु ने, याद रखना चाहिए, अरस्तु ने ड्रामे के लिए 5 अज़ाई तरकीबी वज़अ किए हैं: किस्सा, किरदार, मरकज़ी ख़याल, मकालमा और मौसीकी। लेकिन साथ ही वो स्टेज के आराइश को भी ड्रामा के लिए ज़रूरी करार देते हैं। अरस्तु ड्रामा को अमल की नकल कहते हैं। इनके मुताबिक
ड्रामा ज़िंदगी की ऐसी नकल है जो अदाकारों के ज़रिए देखने वालों के सामने पेश की जाती है। मैं एक बार फिर पढ़ूँगा। इनके मुताबिक ड्रामा ज़िंदगी की ऐसी नकल है जो अदाकारों के ज़रिए देखने वालों के सामने पेश की जाती है, जो बिल्कुल सच्ची और असली मालूम होती है। नाक़िदीन ड्रामा ने ड्रामा के जो अज़्ज़ाए तरकीबी मुकर्रर किए हैं वो दर्ज ज़ैल हैं: प्लाट, किरदार, मकालमा, तसलसल, तसादुम, मरकज़ी ख़याल, आगाज़, नुक़्ता उरूज। और मैंने कुछ जो अल्फाज इसमें हैं जो कि आपको समझाने के लिए मैंने उनका ये मायने भी लिखा है, आप गौर से ये सुनेंगे। प्लाट आपने अपनी कापियों पर भी लिखना ये इनका मायने। प्लाट का मतलब है ड्रामे का किस्सा या ड्रामे का खाका, याद रखना चाहिए। प्लाट ड्रामे का किस्सा या ड्रामे का खाका। इसके बाद है तसादुम। तसादुम का मतलब है टकराव। रक़्स मतलब है नाचना, रक़्स करना, नाचना। नुक़्ता उरूज जब ड्रामा इख्तिताम पर हो उसको नुक़्ता उरूज कहते हैं। रस कहते हैं जूस को जो उसका खुलासा है, जो इसका मतलब है ड्रामा का। अरस्तु ने उसको भरत ने उसको रस कहा है। मश्तक वो कलमा जो दूसरे कलमे से बनाया जाए। मश्तक किसको कहते हैं? वो कलमा जो दूसरे कलमे से बनाया जाए, याद रखना चाहिए। मकालमा हम कलाम, मूसीकी साज़ संगीत, आराइश सजाना, ज़ेबाइश जिसको कहते हैं। सजाना तिश्वान जात, ज़ेबाइश तिश्वानानक। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।